Hello students, how are you? Today we start the new exercise 12.2. All concepts we already taught this, right? Area of the parallelogram, area of rhombus, all things, right, in the first lecture. So let's start the exercise, okay, of the 12.2 depends to complete the 12.1, right? Okay, so here the first question is a park in the shape of the quadrilateral ABCD has the angle C is equal to 90. Okay, AB 9 meter, BC 12, CD 5, AD 8. So how much area does it cover? Okay, now with the simple this of normal area, right? Okay, so this of the occupy. तो यहाँ पे बाकी है occupy. Okay, so how does it occupy? So it's simple. Occupy, that means so first of that, which angle is the right angle? So angle C is the right angle here, I think. Yeah. So AB 9. So AB, this one is a 9. Okay, 9 meter. Then AB is equal to 9 meters. BC 12. BC. Okay, BC 12 meters. Then CD 5 meters. Okay. BD here AD 8 meter. Okay, AD 8 meters. Okay, so how much area? So I want to find first the BD, right? Okay, so you know that first in a triangle BCD is a right angle because major angle B is equal to 90 degree. C is 90 degree. So this is the right triangle, right? So use the Pythagoras. So you know that by Pythagoras theorem. Okay, by Pythagoras theorem. Okay, so you just think about Pythagoras theorem, right? So hypotenuse square BD square is equal to BC square plus CD square, right? BC how much? 12 square plus CD how much? 5 square, right? This is the pair of triplets, Pythagoras, plus 25. So BD square is equal to 169. Okay, so BD is equal to 13 meters. Right? Okay. So we need here this part is a parallel, this of kind of shape, right? So there are two right triangles. So total area of part, the area of BCD of triangle and ABD triangle, right? So first find out the area of right triangle BCD. Here we not apply the arrows, क्योंकि direct मिल रहा है. So here area of the right triangle BCD is equal to half into, you know that product of two sides forming the right angle. So CD into BC, right? So it's very simple. 1 by 2. Okay, 12 into 5. You cut this. Okay, so there are the 13 meters square. Okay, then after using this formula, so for triangle ABD, right? A is equal to, this one is 13 meters, right? So A is equal to 13, B is equal to 9, and C is equal to 8. Apply the Heron's formula: A plus B plus C by 2. So here 13 plus 8 plus 9 by 2. So 13 plus 7, 20, 22 and 13 by 2 is equal to 15. Right? We got S is equal to 20. 15. 30 by 2, that means 15. Okay. So the area of this triangle by Heron's formula, right? Students, by Heron's formula. Okay. S into S minus A, S minus B and S minus C. So here S, that means the 15 minus 13, okay, 15 minus 12 and also 15 minus, okay, also 15 minus
Here first of that 13, sorry 9, okay, and also the 8. Clear? So 17 and 13, so we got this is 13, no? Right? Now, so you have the, so 15 into, got this 2 into 19, so 6 again into 7, right? So the, you know that 16, that means the 3 5s are, right, into 2 into 2 3s are, and into 7. So you have the 2 square into 3 square into 35. So you got the answer is equal to 6 under root, okay, 6 under root 35. Your answer is equal to 6 under root 35 meters square. But we know that under root 35 कैसे ढूंढते थे, मैंने उस दिन आपको सिखाया था. So 35 students, okay, nearest square is equal to 5. So 5 and 5, understand? So 25 students is 25, then 10, okay, is double 0, okay, so 20, so nearest to the answer 1000, right? So nearest that will values which, batao, nearest. So 25 is nearest value 4 4, 16, 1 carry forward 20, okay, 1 2 carry forward 12 and 4, it's increasing. So 2 3 3 here, 3 3s are 9, 15, 1 carry forward this time, okay, understand? 4 4 are 16, 1 carry forward, okay, the, and I think 2 to 10, okay, so here 3 something, right? So here 3 3 and 759, approximate 5.3. So 5.3 multiplied by 6. So 18, 1 carry forward. Okay, then it is 38. Okay, 31.8 approximate. So you written here approximate 31.8 meters square. Okay, understand? Approximate this value. Okay, so required area of part, that means. So therefore, area of part, right, is equal to area of the ABD plus area of the BCD. So you got this 13 plus 31.8 something. Okay, so simple, understand? Okay, getting this. Okay, first of that, so our nearest answer, so approximate answer is equal to root 35. Again, just check this, because root 35, 6 6 are 36, approximate 6 near to the 6, right, near to 6. So 5 5 25 10, okay, near to, so near to 6 6 are 36 and it is 35. So just check this values here, 1000. So we have the 253. So 3 3s are 9. Okay, 15, 1 carry forward 7. So 254 by 4. So 6. Okay, 1 carry forward 20. 0, 21, 2 carry forward 10. So 1000 से ज़्यादा हो जाता है तो ये 3 तो बराबर है 7 फाइनल. अब 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके, इधर 4 आ जाएगा और ए 9 ये 2 हो जाएगा, अगेन 2 0, राइट, ये 6 हो गया, ये 5 and 2 नियरेस्ट वैल्यू वी गॉट दिस, राइट. सो 2 5, so 2 5 6, again 5, okay, so nearest, sorry, it's very nearest 25. So approximate 8 8 are 16, 8 are 64, 6 carry forward 48, 54, 5 carry forward 40 into 45, 4 carry forward 69 20. Okay, so again 2 5 6 9 into 9,
81, 8 carry forward students 54 and 6 carry forward 45 and 6 1 carry forward 5 18 and 2 3. Okay, so therefore 9. Understand? So approximate to 5.39. So 5.39 into 6. So 54 5 carry forward 18 plus 5 23 2 carry forward is nearest to 32.3. Right? So this answer is nearest to 32.34. Right? Okay, so 35.34 meter square. Okay, sorry, ABD का आ गया here आंसर 32. आप लिख सकते हो 32.34 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. राइट, ये मैंने लिख दिया. अब देखो इसका तो कितना आया था 30. सो अप्रोक्सीमेट आंसर 62.34 मीटर स्क्वायर. राइट, ओके. नहीं तो रूट में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टैंड? ओके, तो ऐसे आंसर्स लाने पड़ेंगे. ओके, तो ये पैटर्न भी आपको याद रखना है ऐसे ही बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. मैंने बना दिया एबीसीडी, सारी साइड दी है. ओके, तो क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए. तो चलो AB इज इक्वल टू 3. राइट, 3 सेंटीमीटर, A 4 सेंटीमीटर है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. CD 4 सेंटीमीटर, CD ये भी 4 सेंटीमीटर है. ओके, देन आफ्टर AD है 5 सेंटीमीटर, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर. ओके, AC 5 है. ओके, तो सीधी बात है, AC क्या मिल रहा है बच्चों 5. तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल. ट्रिपलेट्स है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें वो भी बहुत जरूरी है. तो कोई बात नहीं, आप दोनों में हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो. अंडरस्टैंड? ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में हेरोन्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये सीधे मिल रहा है आपको पता है तो चलो सबसे पहले एरिया ऑफ फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC चेक कर लेते बच्चों. ABC. राइट, तो S इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 3 प्लस 4 प्लस 5/2. राइट, तो कितना होगा आपके पास? 3 4 एंड 5 है बच्चों. तो सीधी बात है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला लग रहा है ना आपको, तो उससे अच्छा सीधे ही आपको मिल जाता है, तो हमें वो यूज करना चाहिए. ओके, सो 12/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6. चलो S मिल गया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ऐसे लिख सकते हैं. सो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. चलो क्या आएगा? तो सिंप्लीफाई सीधे ही कर देते हैं. 6 इंटू 6 माइनस 5, 6 minus 4 and 6 minus 3 is equal to 6 into 1 into 2 into 3. तो सीधी बात है 6 स्क्वायर तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. ठीक वैसे फॉर ट्रायंगल, ओके, फॉर ट्रायंगल ACD बच्चों, इसके लिए सेमी पैरामीटर क्या होगा? इसके लिए सेमी पैरामीटर, ओके, सो 5 प्लस 4 प्लस 5/2. सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 7. राइट, ओके, 7 मिल गया. तो चलो एरिया ऑफ द ACD, एरिया ऑफ हेरोन्स S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. राइट, ओके, सो S इज इक्वल टू, सो S इज इक्वल टू 6 माइनस, ओके, 3, 6 माइनस, सॉरी 5 है, तो मुझे यहाँ पे 5, 6 माइनस 6 नहीं है, 7 है यहाँ पे. तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 4. बट इट इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा बच्चों? 7 आया इंटू 2 एंड इंटू 3. तो बहुत सीधी बात है, 2 स्क्वायर एंड अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, सो एरिया, अब इसको आप रूट 2 में लाना चाहते हो बच्चों, तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा. तो 21 है तो 4 4 are 16, रिमेनिंग टर्म और 5. ओके, डेसिमल में 2 0, इधर हो गया 8, तो नियरेस्ट, ओके, 5 तो 500, तो 8 के साथ 85 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2 कैरी फॉरवर्ड 40 एंड 42. और भी चांसेस है, 8 6 लेते तो 6 36, 3 कैरी फॉरवर्ड
48 एंड 3 51, ओके इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे 5 से करोगे तो 425 आएगा, राइट। तो रिमेनिंग का 75 इधर हो जाएगा आपका 55, तो 85 5 बच्चों, ओके। तो ये हो गया 19 और 20 नियरेस्ट लाने के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 8 जार 72, 9 8 जार 72 अप्रोक्सीमेट। सो 4.58 इज आंसर अगर 28 है तो, राइट। तो कितना हुआ 4.28, राइट। सो 2 इंटू हम लोग लास्ट में चेंज कर देते तो याद रखो, एक तो क्या था 2 इंटू 4.58 आया, राइट। चलो, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABCD, ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। ये कितना आया 6 प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू √21 मतलब 4.58 अप्रोक्सीमेटली। तो 6 प्लस 8 2 जार 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 10 and 11, 1 कैरी फॉरवर्ड and 9, approximately 15.16 centimeters square, okay, approximately, got it? So 15.16, understand? ऐसे आप लोग आंसर थोड़ा पॉइंट पे डिफर आ सकता है बच्चों, ओके, इसी के अंदर। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट, क्या करोगे? चलो बच्चों, फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन के अंदर a triangle and a parallelogram have the same base and the same area same है, okay। if the side of the triangles are 26, 28 and the 30 centimeter, parallelogram stands on the base of the 28 centimeter, then find the height of the parallelogram, okay। so here question number 4, so question 4, so for triangle, okay, for triangle we have the A is equal to for triangle A is equal to 26 centimeter, B is equal to 28 centimeter, right, and C is equal to again 30 centimeters, right, okay। तो first of that S सभी पैरामीटर A plus B plus C, right, into 13 by 2 is equal to 6, 14, 1 carry forward 6 and 2, 84 and by 2 is equal to 42 centimeter। So area of triangle is equal to here S into S minus A, S minus B, S minus C, okay, understand? Oh, here S minus, so S that means how much? 42, right? 42 minus 26, 42 minus 28, okay, and 42 minus 13, right? Oh, okay, is equal to here the 42 into 12 6 16, okay, into 12 4 14 and into 12, right? So you know that 14 3s are into 16 मतलब 4 square, 14 as it is and 12, okay, so 3 into 4, right, okay। So it's simple, why simple? It's very simple, 14 4 square first return, 14 into 14 14 square, okay, 3 square into 12 मतलब 9 16 36 36 मतलब 2 square, square root लेके गायब, so 4 into 6 into 14, right, okay। So we got the 84 into 4
सो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चों, 33 स्क्वायर। क्वेश्चंस के अंदर हमें शायद इतना ही दिया होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं, राइट है, बराबर है। ओके, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ये तो आपने बता दिया यहाँ से, राइट। ओके, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा दिया है। तो एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया, एक साइड स्टैंड्स ऑन द बेस इज 28। ओके, तो फॉर्मूला है बेस एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड या हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो 336। बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे 28 है, इनटू अल्टीट्यूड हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, राइट। सो अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 336, सो द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, ओके, सो 336 डिवाइड बाय 28। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 है तो 7 से कट करो तो पता चले आपको। ओके, तो पहले अगर आप 2 से कर रहे हो ना, 4 से करो ना, 4 7 जार, राइट, 4 7 जार, 4 से करोगे तो 4 8 जार एंड 4 4 जार, राइट। तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर। वी गॉट दिस, अंडरस्टैंड। ओके, बस ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है, और खास करके फिगर्स वाले बहुत है, तो ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये तो टेक्स्ट बुक है, विदाउट टेक्स्ट बुक बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो उसी के बेस आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों। चलो फिर, रोम्बस सेंटर द फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows, right, to graze. So each of the side of the rhombus is 30. All sides are equal in square and rhombus. Okay, so its longer diagonal is 48. One diagonal is given that. So of the grass field, each cow for getting. Okay, तो आप जानते हो यहाँ पे दो चीज से आप कर सकते हो काम। rhombus है तो दो ट्रायंगल करके कर सकते हो, सीधी बात है। ओके, एक और एक डायगोनल है तो आप जानते हो एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2। ओके, तो क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि पाइथागोरस अप्लाई करके आपको क्या करना है, दूसरा एक डायगोनल लाना है या फिर हैरोज यूज करना है। ओके, क्योंकि सेम ट्रायंगल आएगा इसीलिए बता रहा। तो चलो सबसे पहले एक सिंपल चीज, एक आपने एक rhombus बना दिया, इसका लॉन्गेस्ट जो है वो, तो यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C एंड D। चलो ये 48 है और बाकी साइड सब 30 है, सो 30 30 30 एंड 30 मान लो। तो ये सीधी बात है, डायगोनल दो पार्ट करेगा तो एरिया क्या आएगा, सेम। ओके, तो अगर आप हेरोन्स करते हो तो हेरोन्स कर सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट rhombus का यूज करूँ। तो मुझे rhombus के लिए दूसरा डायगोनल चाहिए, क्या चाहिए, दूसरा डायगोनल। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ rhombus आप यूज कर सकते हो, ये दूसरा डायगोनल मान लो, और इनटू बाइसेक्ट करेंगे, राइट। तो अगर ये 48 हो, ये कितना होगा, 24 और 24 में डिवाइड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ओके, और इसको अगर मैं नाम दे दूं M, क्या दे दूं नाम, बोथ आर इंटरसेक्शन, ये कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल AMD, किसकी बात कर रहा हूं मैं, AMD, पाइथागोरस बन गया। तो आप कर सकते हो ना कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। ओके, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो काम आसान हो गया, इधर 13 स्क्वायर हो गया, AM स्क्वायर पता है 24 स्क्वायर, राइट, प्लस MD नहीं पता तो MD स्क्वायर। सो देयरफॉर MD स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 24 का कितना है, 576, 10 माइनस 6 कितना होता है, 4, 9 माइनस 7 2, ओके, और 8 माइनस 324। सो MD इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया, कितना आ गया, 18। तो आप जानते हो कि BD इज इक्वल टू डबल ऑफ MD, बाइसेक्ट करता है ना, तो 2 into 18 कितना आ गया बच्चों, 36।
ओके, तो अब मेरे लिए तो एरिया क्या हो गया, इजी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही था। तो चलो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्या लिख सकते हो, d1 इंटू d2। सो 1/2 d1 कितना है 48 इंटू d2 इज इक्वल टू, d2 कितना है 36, आपने कट कर दिया है, कितना गया 24। सो 36 एंड 24, राइट। तो 0 12 1 कैरी फॉरवर्ड 7, okay 24 2 carry forward 12 and 14, so 4 6 and 8, so your answer 864 meter square, centimeter in meter, okay तो मीटर स्क्वायर। चलो ये पूरा आ गया। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड ईच काउ कैन बी, मतलब गेटिंग, तो हर एक काउ के हाथ में कितना आएगा, राइट, मतलब कितना वो ग्रेस कर पाएगा। टोटल काउस कितनी है यहाँ पे बता दिया है, कितना है 18, कितना है 18। तो चलो क्या करोगे, अब आपके पास टोटल तो मिल गया है, राइट। समझो कि पूरा फील्ड है, इसमें आपको एरिया पता है कि इसका कितना टोटल, यहाँ पे 18 काउ है तो कितना पोर्शन ग्रेस कर सकते हैं, उसका मतलब एक काउ कितना कर सकते हो, क्या करोगे टोटल डिवाइड बाय क्या करोगे नंबर ऑफ काउस, टोटल एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउस। चलो क्या आएगा बताओ तो फिर। अब अपना काम तो आसान हो गया है, राइट। चलो क्या करोगे, सो द एरिया ऑफ द ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास अवेलेबल फॉर वन काउ फॉर ग्रेजिंग, राइट, for grazing can be, okay normally, तो कितना मिलेगा cows for one cow, तो एक आपका 864 डिवाइड बाय 18, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। 18 5 are 19, तो 18 4s are, okay 18 4s are 72, तो 6 and 72, ये 4 आ गया इधर, 1 1 4 4, so 18 8s are, okay 18 8s are, okay मीटर स्क्वायर। तो एक काउ के पोर्शंस में 48 मीटर स्क्वायर आएगा, ओके टू ग्रास, अंडरस्टैंड, ओके बच्चों समझ में आ गया, ओके। सो इन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। In next video we complete this exercise and so much sum, and then another video, okay, of the out of the our textbook sums, okay. Thank you till then and bye bye.